kids, welcome to grade 9 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1 which is the story of village Palampur, and today's session will be session number 3. तो आज हम लोग अपने grade 9 का जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसका सेशन जो 3 है उसको डिस्कस करेंगे. Now village Palampur जैसे कि we have seen and discussed in earlier sessions कि ये एक hypothetical village है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं. And now we'll see कि how is the land जो है, how is that distributed between the farmers of Palampur. तो different जो farmers भी होते हैं वो भी different levels के होते हैं, because some of them उनके पास अपनी बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, some have very less जो farm land है उनके पास, and some of them they work on someone else's field. So not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. तो जो भी सारे लोग engaged हैं farm activity में या agriculture activity में that we have discussed कि जो पालमपुर में लोग रहते हैं सारे, जो मेन उनका काम है दैट इज़ फार्मिंग. तो जो भी जितने सारे लोग रहते हैं वहाँ पे जो फार्म एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं वो सारे सबके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए. In Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. That is 150 families. Most of them Dalits have no land for cultivation. तो पालमपुर में जो 450 families रहती हैं उसमें से जो 1/3 है उनकी families, उनके पास अपनी कोई भी जो लैंड है वो नहीं है. सो अबाउट 150 जो families हैं दे आर लैंडलेस. एंड उसमें कौन से लोग ज़्यादा हैं? दे मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स, एंड उनके पास कोई लैंड नहीं जो वो कल्टिवेट करें. सो दे वर्क ऑन समवन एल्सेस लैंड, और वो कुछ और काम करते हैं. या तो ऑल ऑफ द पीपल, ऑल ऑफ द जो लोग रहते हैं वहाँ पे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी लैंड होगी, तो सारे लेवल के लोग यहाँ पे रहते हैं. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. तो जो remaining families हैं 150 families were दलित family जिनके पास land नहीं है, बट जो रिमेनिंग फैमिलीज हैं जिनके पास लैंड है वो भी उसमें से 240 जो फैमिलीज़ हैं जो कल्टीवेट करती हैं ऑन देयर ओन लैंड, उनके पास बहुत ही स्मॉल जो लैंड साइज है उनका वो बहुत स्मॉल है. वो कितना है? वो लेस देन 2 hectares इन साइज है. एंड कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. तो जो ये साइज है 2 hectares से कम की जो ज़मीन है फॉर ऑलमोस्ट लाइक 240 फैमिलीज़ के पास, सो वो जब इस पे कल्टिवेशन करते हैं सो दे डोंट गेट इनफ ऑफ द क्रॉप जिससे कि उनकी इतनी इनकम हो कि दे कैन बी कंफर्टेबली दे कैन लिव विद देयर फैमिली. तो लाइक वी हैव सीन कि कुछ लोगों के पास बिल्कुल लैंड नहीं है, एंड अ लॉट ऑफ देम 240 फैमिलीज आर अ लॉट जिनके पास बहुत ही कम लैंड है. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have had land extending over 10 hectares or more. तो पालमपुर में क्या है? There are 60 families of medium and large farmers हैं जो cultivate करते हैं more than 2 hectares of land. A few जो उसमें से हैं कुछ large farmers हैं जिनके पास जो land है that is more than 10 hectares. So there are a lot of different medium large जो farm land है वो लोगों के पास है. some of them have no farm land. So this is how it is. Even if ये जो पालमपुर village that we are discussing it is like an imaginary जो village है, but it is almost same. अगर आप real village में भी जाएंगे so it is almost same everywhere. That there are some people who don't have any land and they work on someone else's land, and then there are some having the land जिनके पास land है but वो बहुत कम है कि वो adequately उस पर crop भी लगा पाएँ या फिर they can have sufficient income for the whole year. And बहुत ही कम ऐसी families हैं जिनके पास a lot of farm land that they have, because what happens it keeps वो छोटी से छोटी land होती जाती because it gets divided into people.
Now who will provide the labor? जो farm activities के लिए you need labor for that. So after land, labor is the next necessary factor for production. So if we look at the farming, अगर हम लोग उसमें देखें तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं. First of all, you need the land. That is the most important thing, because आप farming कहाँ करेंगे, आप land पे farming करेंगे. So after that, what do you need? You need labor, because land is not going to grow crops and so on. अपने आप तो वहाँ पे कुछ लगेगा नहीं. You need labor for that. उसके लिए आपको लोगों की ज़रूरत होगी. And बहुत सारी families होंगी जो अपने आप सारा काम करती होंगी. And then there are some families जो ये बड़ी फार्म लैंड है, सो दे नीड पीपल कि वो आके उनको हेल्प करें. सो जो लैंड के बाद है, नेक्स्ट नेसेसरी जो थिंग है प्रोडक्शन के लिए इन अ फार्म के, हम लोग एक्टिविटी को देखें तो वो लेबर है. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. तो अगर आप लोग बच्चों कभी गए हों विलेजेस में या समवेयर इवन सिटीज़ में जहाँ पे फार्मिंग होती है, तो आप देखेंगे इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. वो बहुत हार्ड वर्क होता है. You cannot be indoors, you have to be outdoors होना पड़ता है, and sunlight जितना भी तेज हो, you have to work. So it is a lot of hard work जो है बहुत ज़्यादा है farming में. And that is why we see कि people go to cities, leaving villages को छोड़ के. That is why जो young generation है वो वहाँ से निकलना चाहती है, because वो जो work है वो बहुत ही hard है farming का अगर देखें तो. Small farmers along with their families cultivate their own fields. जो small farmers हैं जिनके पास very less land they have, तो what they do, full family जो है वो they work together और इस तरीके से they do their own work. Thus they provide the labor required for farming themselves. तो वो क्या करते हैं फिर अपने आप को ही वो अपना labor they are their own labor and they are their own worker. वो अपने आप ही अपना सारा काम फार्मिंग का करते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. नाउ जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं वो हायर करते हैं लेबर अपने जो फील्ड है उसमें काम करने के लिए, बिकॉज वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव द मनी, वो अफोर्ड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो उनका जो फार्म है वो इतना बड़ा है कि इवन इफ जो उनकी होल फैमिली वो काम करे तो वो भी नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ वाई दे नीड टू हायर लेबर्स. Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. तो कहाँ से आएंगे? गांव में आप जो गांव के सारे लोग हैं they only will be your labor. तो who will work? जो भी लोग हैं जिनके पास या तो अगर उनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है so they are free, वो लेबर का ही काम करते हैं. एंड इफ जिनके पास बहुत ही कम ज़मीन है तो व्हाट दे डू, दे हेल्प अदर्स, वो दूसरों की हेल्प करते हैं फार्मिंग में. सो दे गेट सम extra money for that. So unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. So unlike जो farmers होते हैं जो अपनी land पे जो farming करते हैं, उनका क्या होता है कि जो भी crop होता है वो उनका अपना होता है. Either वो अपने लिए यूज़ करते हैं और they go to the market to sell it and they get money for that. बट जो फार्म लेबर्स होते हैं उनके अपनी बिकॉज इट इज़ नॉट देयर ओन लैंड, तो उनका जो क्रॉप पे वो काम करते हैं वो उनकी खुद की क्रॉप नहीं होती. सो दे डोंट हैव एनी राइट, उनका उस पर कोई भी राइट नहीं होता है. दे जस्ट वर्क, वो काम करते हैं एंड दे गेट पेड फॉर दैट. The modern farming methods require a great deal of capital so that the farmer now needs more money than before. तो जो modern farming methods हैं वो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है and we are getting developed in technology farming में, जिसकी वजह से we can grow more than 3 crops in a year. बट उससे क्या हो रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी इट कम्स एट अ प्राइस, तो उसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है इवन टेक्नोलॉजी के लिए. एंड उसमें काफ़ी सारा कैपिटल और मनी इज़ रिक्वायर्ड. सो जो फार्मर्स हैं अब उनको पहले से ज़्यादा दे नीड मनी फॉर ऑल दोज थिंग्स. कि इरिगेशन के भी दे हैव न्यू मेथड्स फॉर इरिगेशन. पुराने ज़माने में दे यूज टू गो बाय द ट्रेडिशनल मेथड, बट अभी नए नए मेथड हैं तो दे आर गेटिंग दोज मेथड्स. पर उसके लिए दे नीड उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. तो जो
छोटे छोटे फार्मर होते हैं, दे हैव टू बोरो मनी। ये अगर आपने बच्चों में देखा होगा कहीं पे भी, इवन इन द मूवीज अब दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, दे नीड मनी, वो जाके किसी और से दे गेट मनी और इंटरेस्ट पे उनको मनी लेना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस कि इफ़ यू आर अ स्मॉल फार्मर्स और आपको यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इरिगेशन के लिए, एंड यू नीड क्रॉप्स लगाने के लिए, यू नीड अ लॉट ऑफ सीड्स एंड एवरीथिंग, उसके लिए उनको पैसे लेने पड़ते हैं, अरेंज करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है मनी दूसरे लोगों से। In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings from farming. Now, जो medium and large farmers हैं, उनके पास अपनी खुद की जो savings होती हैं वो होती हैं, because जो उनकी ज़मीन है जिस पे वो crop लगा रहे हैं that is big, so what they do, they keep whatever they need for their own family, and जो extra उनके होता है they sell in the market and they get a lot of money for that. तो उनके पास they have their own savings. Suppose that the farmers have produced wheat on their land using the 3 factors of production. Now, जो surplus उनके पास whatever the crop they have, what they do with it, they go and they sell it in the market. तो now suppose कि एक farmer ने अपने आप produce करा whatever the crop उन्होंने produce करा, wheat है या जो भी उन्होंने लगाया, and उन्होंने उस पे अपने farm land पे उसकी farming की। नाउ जब उनका इफ वी टेक द एग्जांपल हम लोग लें वीट का, तो द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। नाउ जब वीट लग जाता है और वो हार्वेस्ट हो जाता है, वो उसको कट कर लिया जाता है, वो तब क्या होता है, वो हार्वेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? अब जो वीट उनका आया वो उसका क्या करते हैं? नाउ दे हैव द वीट, उन्होंने फार्मिंग कर ली एंड एवरीथिंग इज डन, उन्होंने काट भी लिया सब कुछ। They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. तो वो क्या करते हैं कि whatever they require for their family, तो वो पूरे for the whole year they keep it at home. So that is why they have different spaces they keep, और बिग उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े चीज़ें बनी होती हैं स्पेशली ये सारे वीट और ये सब रखने के लिए। सो दे कीप इट फॉर द होल ईयर, वो अपने यहाँ रखते हैं, और जो सरप्लस बचता है वो जाते हैं वो मार्केट में बेचने के लिए। एंड दैट इज़ वाई दे हैव द सेविंग्स, जो मीडियम एंड लार्ज जो फार्मर्स हैं। Small farmers have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial sale is kept for their own family needs. Now जो small farmers हैं उनके पास they already have very small, उनके पास जो land है वो बहुत छोटी है, so that is why the crop that they grow is very small in quantity. So most of it क्या होता है कि वो उनके अपने ही घर के लिए what they need for the whole year वो रख लेते हैं। So whatever is left, जो उनका कुछ भी बचता है वो एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है जो वो जाके मार्केट में सेल करते हैं। सो जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास दे हैव अ लॉट ऑफ जो क्रॉप है वो बचता है सेल करने के लिए, बट स्मॉल फार्मर्स के पास बहुत ही कम होता है। इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो जो सप्लाई वीट करते हैं मार्केट में वो जनरली कौन होंगे? वो होंगे मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। तो जो भी हम लोग देखते हैं बच्चों, आप लोग जाते होंगे टू बाय वीट या टू बाय जो आटा है वो अगर आप बाय करने जाए मार्केट में तो आप देखेंगे जनरली वो क्या होगा, वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स का होगा, बिकॉज उनके पास ही वो सरप्लस बचता है। तो इन दिस सेशन व्हाट वी हैव सीन, वी हैव डिस्कस की किस तरीके से देयर आर लाइक 3 ग्रुप्स जो है फार्मर्स के वो होते हैं, और जो भी द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटी उसमें सम ऑफ देम आर लैंडलेस लेबर्स हैं बिकॉज दे वर्क ऑन समवन एल्सेस लैंड, और फिर उसके बाद वी हैव स्मॉल टू मीडियम साइज जो लैंड ओन करते हैं वो फार्मर्स हैं, एंड देन देयर आर मीडियम टू लार्ज जो लैंड ओन करते हैं वो लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस होता है सेल होता है मार्केट में वो कौन करते हैं, वो करते हैं मीडियम टू लार्ज फार्म ओनर्स। So this is what we have discussed in this session. Thank you.